Today's talk is about understanding intangible cultural heritage. What is ICH? So I hope everyone must have come across through this term intangible. So intangible culture, it's the soul of the culture. In Hindi, we say it, we call it Lok Parampara. So if we go through with the definition of UNESCO, it says that it's a non-physical intellectual property of an area. किसी भी क्षेत्र की जो बौद्धिक संपदा जिसको हम कहते हैं that is intangible. And when we elaborate it further, the definition of UNESCO, it says that the intangible culture is traditions or living expressions inherited from our ancestors and passed on to our descendants, such as oral traditions, performing arts, social practices, rituals, festive events, knowledge and practices concerning nature and the universe, or the knowledge and skill to produce traditional craft. In 2003, UNESCO realized that a lot of work is being done. Number of agencies worldwide are working in conservation, in restoration, in preservation of heritage, especially the built heritage. But somewhere between the line, they were missing the soul, which is the intangible. Like whatever we see in forms of tangible monuments, building structures, behind it, it's a philosophy, a thought process which goes around. So एक उदाहरण के लिए किसी भी मॉन्यूमेंट को हम देखते हैं, किसी भी हेरिटेज बिल्डिंग प्रॉपर्टी को जब हम देखते हैं, तो अगर केवल बात करें ताजमहल की एज अ स्ट्रक्चर, वो उतना सुंदर नहीं लगता जब जब तक हमें उसके पीछे की जो सोच एंड कहानी, when we come across that how it was built, what was the reason behind it, what was the technique, who are the craftsmen, masons जो उसमें लगे. So UNESCO realized that we are missing the intangible part of the culture, and it requires recognition. At first, a definition should be there that how we define intangible culture. So in 2003, this definition of intangible culture was provided by the UNESCO. And all these images which you are seeing in the background, the first image, second, all these images has been taken by me during my field documentation. And now, to make it more easier, that what are the domains of ICH? So ICH here means intangible cultural heritage. So there are 5 domains in which we can see the ICH. So it includes oral traditions. So anything related to any ritualistic activity. सपोज अभी छठ पूजा हाल में ही हुई, उसके पीछे की जो कथा है, लोक परंपरा है, जो मान्यता, क्या कहानी है, सूरज को अर्घ क्यों देते हैं, द 3 days 2 days जो पूरा ये चलता है, एंड हाउ इसका जो रेफरेंसेस है वो कहाँ कहाँ मिलता है, ऑल दिस हैज बीन ट्रांसमिटेड. Most of these festivals culture has been transmitted by orally, that during such and such time period, such fair and festival or such ritual has to be practiced. Then we have performing art. In this particular image, you are seeing a person, the lone person who is performing the famous Ala Udal at Kannauj. And in the third image, it's a traditional craft. So in domains of ICH, traditional crafts is also included. And in this particular image, Muhammad Mustaqim is the last practitioner, you can call him, who is creating this marvelous craft of kuppi making at Kannauj. This leather kuppi is used for storing the itra, the perfume. And as we all know that Kannauj is very famous worldwide for this craft, the Itra Udyog, perfumery. It's known as the perfume capital of India. And he is the only person out of 22 persons who are practicing this craft of making kuppi. This is used for storing itra, as I told earlier. And there are certain properties like moisture can't seep in the leather.
So it's a unique craft, but the only person at present in 2021 is Mohammad Mustaqim. Then we have languages and dialect. Here also, this is also a kind of a crucial part of ICH. हमारी जो भाषाएं हैं, हमारी जो बोलियां हैं, हम अलग अलग बोलियों में हमारे बहुत सारे गीत, छठ की ही बात करें, we all must have heard about छठी मैया के गीत and Malini Awasthi's famous, folk songs of during this Chhat. And then we have fifth domain, which is social practices and ritual. And in this image I have taken at a place in Karnataka, in Shimoga district. It's called the Mattur village, which is near the Tunga River. And it's the only Sanskrit speaking village in India, the last Sanskrit speaking village in India. And the person here is performing Agnihotra Yagya. So these are the domains of ICH. So these are domains of ICH, 5 areas in which we can see. I mean, everyone who is watching right now can make himself or herself well versed with all these things, like domains of ICH, 5 of them. So before I proceed to how we document, how we do our exercise, field exercise, one thing we all miss in our daily life is ethics. Whenever we do photography and all, when we try to shoot, videograph someone, we do practice ethics of documentation here at ICH division at INTAC. And I would like to share 5 points with you that whenever you undertake any project, any task, or any project, or whatever role is given to you to document certain aspect, you need to have these ethics in your work. It should reflect. So first is transparency. So suppose you want to document Latmar Holi of Barsana, you should have transparency at every stage. You should be very clear with your target audience, like the people of Barsana Braj, where you will be visiting, to tell them that this is the area, this is the proposal, this is the field on which I am working. You should be clear with them. There should be no such kind of manipulation or things like that. So transparency in documentation work. So suppose we go on field, like at present we are working on the ongoing Namami Gange project, which is a cultural documentation of river Ganga from Gaumukh to Ganga Sagar. So from origin to where it disperses at Kolkata, we are documenting the cultural heritage along the Ganga. So whenever we visit areas or districts or villages, we let the people know very clearly that what is our objective, what we want from them, and what will be the output. Nowhere we try to hide anything, so that a transparency is there, and the people are willing or volunteer to help us. Second is, don't be manipulative. Whenever you document someone, you should not manipulate it for your own personal benefit or something like that. Like you are deceiving someone, you are telling them a different story, and you are producing something else. Third is, respect cultural and ethnic identity of the intended group. So whoever we are documenting, we must respect their cultural and ethnic identity. दिल्ली में ये बहुत होता है, because दिल्ली में बहुत सारे लोग जो हैं, most of us are from various areas, अलग अलग जगह से हम आए. But होता ये है कि when we mix up with the like-minded people, then हम एक preconceived notion हमारा दूसरे के प्रति बनता जाता है. कई एग्जाम्पल्स आप अपने डेली लाइफ में भी देखते होंगे. But in ethics of documentation, we should respect cultural and ethnic identity of intended group. हम लोगों का जो नॉर्थ ईस्ट स्पेशली, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट हमारे इस पे हमारे नॉर्मल डेली लाइफ के रडार में भी नहीं आता है, हम लोग उसके बारे में नहीं सोचते. वी मस्ट रेस्पेक्ट. इट शुड नॉट बी लाइक अ फॉर्मेलिटी कि हम अगर जा रहे हैं हम किसी का मजाक उड़ाएं, और वी हैव एनी प्री कंसीव नोशन लाइक वो ऐसा ही होगा, वहां के लोग ऐसे ही होंगे. सो रेस्पेक्ट कल्चरल एंड एथनिक आइडेंटिटी ऑफ इंटेंडेड ग्रुप जिनको हम डॉक्यूमेंट.
फोर्थ पॉइंट इज सेंसिटिविटी टुवर्ड्स जेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास कैमरा है, आपके पास डीएसएलआर है, यू हैव मिररलेस कैमरा विद यू, आपके पास ड्रोन्स है, डीजीआई, वो आपको दैट डजंट अलाउ और परमिट यू टू जस्ट गो एंड शूट, और किसी के फेस पे आप कैमरा लगा लें कि हम शूट कर रहे हैं। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स जेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा पर्सनल एक अनुभव रहा है बनारस में, वेर एट अ टाइम ऑफ मकर संक्रांति, वहां पर भूलवश मैंने वहां पे खिचड़ी बन रही थी, और काफी एजेड एक लेडी थी जो खिचड़ी बना रही थी, तो मैंने अपना कैमरा लेके मैं फोटो खींचने लग गया, विच शी ऑब्जेक्टेड, व्हाई यू आर खाने की क्यों फोटो खींच रहे हो, क्यों खींच रहे हो फोटो। तो ऐसे शॉर्टकट नहीं लेने हैं, वी शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स जेंडर। हमें परमिशन लेके, आप घर में जा रहे हैं, आप झोपड़ी में जा रहे हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, whoever is the the person, the जो अथॉरिटी है वहां पर, उनसे परमिशन लेके लेडीज के साथ, बच्चों के साथ परमिशन के साथ ही फोटोग्राफ करें। आई नो कई बार हम लोगों को नेशनल ज्योग्राफिक का एक अंदर से, हमें भीतर से महसूस होता है कि दिस इज द परफेक्ट शॉट, हमें इस तरीके से, बट वी शुड एक्सरसाइज दिस ट्रेट ऑफ सेंसिटिविटी, एम्पैथी टुवर्ड्स द जेंडर स्पेशली। कभी भी अप्रोच करें उनसे परमिशन लेके, विनम्रता एंड बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। फिफ्थ थिंग, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एथिक्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में पीपल जनरली अवॉइड, दैट इज कर्टसी, फॉलो अप एंड एक्नॉलेजमेंट। हम लोग बहुत सारे घटनाओं को, बहुत सारे लोगों के कंट्रीब्यूशन को, छोटा भी हो लेकिन इंपॉर्टेंट रहा हो, हम लोगों के अंदर कई बार होता है कि वी डोंट हैव दैट कर्टसी टू कॉल देम अप, कि हम लोग दिल्ली आ गए, हम अपनी जगह पे आ गए, and the help which you provided, the input which you provided have been a very important for our for our project, ये हमारा जो भी professional commitment है, we thank you for that, and also we would like to acknowledge you in our report, जो भी हमारा final output रहेगा, credit किसी भी रूप। Okay, so now we come to how at ICH, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज डिवीजन में हम कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं, हमारे मेथड्स क्या क्या हैं। So first method which you are seeing right now is list inventorying. हम लोग लिस्टिंग और इन्वेंटरिंग मेथड के जरिए भी जो है, we try to document the ICH. And this particular screenshot of one of a very important Pan India project which I undertook in 2015-16. इसमें मुझे पूरे देश में wherever इंटैक्ट चैप्टर जो हैं वहां जाना पड़ा, वहां के कन्वीनर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ा। अदर देन दैट, रेस्पेक्टिव चैप्टर्स जो हैं जहां जहां पर है, वहां की यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाके उनके जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स, वेदर दे आर फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी, आर्काइव्स, तो वहां विजिट करके इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था कि भारत में इंटेंजिबल कल्चर को लेकर, आईसीएच को लेकर, किस तरह के, what type of literature documentation work is in the custody of these respective organizations, whether it's published or unpublished. तो इसमें थीसिस रिसर्च, सपोज किसी ने एंथ्रोपोलॉजी में किया हो, कई यूनिवर्सिटीज में जो नेशनल या सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है, तो उनके पास भी बहुत सारा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी टाइम पीरियड, किसी एस्पेक्ट को दिखाने के लिए, बट इट्स नॉट अवेलेबल ऑन गूगल। ऐसा जो डेटा है उसको कलेक्ट करने का एक उद्देश्य था, ये एक साल का चला, एंड आईसीएच रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन डेटाबेस में हमने बहुत हद तक इसमें सफलता प्राप्त की, हमने ये बनाया। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड through which we document the ICH, and now this is another survey based method. सर्वे बेस्ड में भी एक टेम्पलेट आपके पास होता है, दिस इज फ्रॉम आईजीएनसीए। जब मैं आईजीएनसीए एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक फोटो डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट था, उसके लिए आई वेंट टू राजस्थान, एंड फ्रॉम देयर ऑल दोज अनलिस्टेड मॉन्यूमेंट्स और कल्चर, द कस्टम्स एंड रिचुअल्स, टेम्पल्स, ये सबको जो है इस टेम्पलेट्स के थ्रू सर्वे करके डॉक्यूमेंट किया।
Then we have another unique method of documentation which we do on regular basis from year to year. पिछले साल तो नहीं हो पाया because कोविड का आपको पता है, और अभी भी जो है स्थिति ऐसी नहीं है कि इसको हम कर पाए. But this was very one of the unique workshop based initiative which we took. And जो आपका अरुणाचल में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है वहां पर हमने किया था, वेयर कल्चरल रिसोर्स पर्सन एंड द कम्युनिटी हेड ऑफ 23 ट्राइब्स, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके जो हेड हैं, दे असेंबल्ड अलोंग विद द एकेडमिशियंस जो हैं, उनके साथ मिलकर एक ऐसा जो है कोलैबोरेशन हुआ जहां पर उन्होंने अपने जो क्राफ्ट्स हैं, अपने जो परंपरा है उसका डेमोस्ट्रेशन, लेक्चर डेमोस्ट्रेशन किया. And all those academicians provided their input that how they can, community within community में कैसे वो document कर सकते हैं. So this was a wonderful exchange of kind of information between both the parties, I can say. So this is workshop based, and now I will provide. This is one of the field documentation which we recently did, and this is the image which you are seeing right now is about इत्रदान. इत्रदान कन्नौज की मैं बात कर रहा था because that is the latest one. हम कन्नौज में गए, and कन्नौज में it's not only about the itra or perfumery, but also there are peripheral, you can say dependent जो है यहाँ पर industries हैं which are dependent on the itra. So this is the इत्रदान, यानी इत्र को रखने का जो केस है वो है, and it is made of teak wood, mango wood, sandalwood as per requirement of the customer. And इसका भी एक और peripheral जो है इंडस्ट्री का पता चला, that was brass inlay work on it. So इत्र के साथ कुप्पी, कुप्पी के साथ आपका ये जो है this इत्रदान, and with that the brass inlay work. The brass inlay work कैसे होता है? This is a video which I will be playing right now. I hope everyone is able to see. Yes. Yes, sir. Great. So this is the final look. So हम लोग जब मार्केट में जाते हैं, whenever we go to such places, हम लोग फाइनल चीज देखते हैं, फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, बट वी उस टाइम पे हम रियलाइज नहीं करते हैं कि ऐसे कैसे हुआ होगा कि ये ब्रास की तार इसमें इस तरीके से फिट हुई होगी, हाउ व्हाट हैज बीन द प्रोसेस, किस तरीके से स्टेंसिल बना होगा जिसमें ये सब चीजें फिट हुई होंगी. सो आईसीएच में इट्स नॉट अबाउट वीडियोग्राफी कि हम जैसे हम लोग न्यूज चैनल्स में देखते हैं 30-40 मिनट्स का, कि हमने जो है ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से बना दिया. डॉक्यूमेंटेशन, आईसीएस डॉक्यूमेंटेशन पर्टिकुलरली इज अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज. इसमें आपको पूरा जो है हर चीज को डिटेल में करना पड़ता है, पूरा डिटेल में आपको उसको हर प्रोसेस को जो है डिटेल में वीडियोस का बनाना पड़ता है अलग अलग स्टेप में. So this is one of the example. Then this is another example of like how we do documentation through audio. Audio हमारा parallelly audio visual AV documentation होता है. So video एक चीज है, audio एक चीज है. So we can hear this gentleman at Kannauj. He is director of one of the oldest you can say perfumery in Kannauj. एंड कन्नौज में इत्र के अलावा जो देखने वाली और इग्नोर करने वाली जो बात है, लोग इग्नोर कर देते हैं, इट्स अबाउट गेट्स. गेट्स ऑफ कन्नौज. कन्नौज की पहचान जो है वहाँ के गेट से भी है. देयर आर 2 गेट्स. एक इन जो ये सज्जन है इनके फोर फादर्स ने बनाया था,
and he is talking about that. So let's hear. मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है, This is मुन्ना all. भैया के नाम से लोग मुझे परिचित हैं। कन्नौज की जो पृष्ठभूमि ऐतिहासिक रूप से और विशेष करके यहाँ के इत्र उद्योग के रूप में रही है, जिसकी एक परंपरागत पहचान हमारे इतिहास से लेके और हमारे धर्म और हमारे शास्त्रों में भी इसका बराबर उल्लेख हमको मिलता है। और हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि कन्नौज की इत्र इंडस्ट्री दुनिया की सबसे अनोखी और सबसे प्राचीनतम इंडस्ट्री है। ये हमारा थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा कि जो हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल्स हमको चाहिए होते हैं वो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। लेकिन हम लोगों की जो अपनी एक विशेषता है कि हम परफ्यूम को कैसे बनाएं, परफ्यूम को इतना रोचक कैसे बनाएं कि वो सूंघने में भी अच्छी लगे और खाने में भी अच्छी लगे, और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में उसका उपयोग, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे वो अन्य व्यापारिक कार्य हो, सभी कार्यों में परफ्यूम का बराबर उपयोग हो, इसके ऊपर हमारे पूर्वजों ने विशेष ध्यान दिया। So this is a long interview, around 45 minutes long interview. This is audio part. We have video part as well, but for transcription purpose, we generally refer to audio part so that our work gets compiled faster. So this is field documentation. Audio is part of this. So I just want to tell you that the documentation of ICH is not only about video. If you have a mobile, and also not about just high-end cameras or high-end logistics. आपके पास जो भी whatever is the best you can say equipment with you, whether it be a mobile or a recorder, you can record it. You can just click a photograph and then you can present through this way also. So it's just an idea. And it's not ICH is not about videography or high end equipment. It's about what is your intention. आप कैसे कर रहे हैं, आप information कैसे निकाल रहे हैं, what is your rapport with the जो person है, जो subject है, उसको कैसे आप convince करते हैं कि वो आपको best possible information दे within that time frame. So this is one of the gates, and this is how we transcribe. Like just now you see a slide of आपने देखी एक slide जिसमें जो कन्नौज के बारे में बता रहे हैं, उसका जो एक ट्रांसक्रिप्शन बनता है, ट्रांसक्राइब, we transcribe it in this format. So there is like a name, the location of the person, date also. Here it is missing, date also, and interview respondent, what was the question, how it was answered. So this is you can say an example. Hare Ram Namkeen at Prayagraj at Loknath Gali is a very famous shop जो 123 साल से जो है नमकीन मीन्स ये नॉर्मल वाली नमकीन नहीं, बट नमकीन के कई सारी वेराइटीज हैं जो ये लोग कर रहे हैं, एंड दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. सो ये अभी जो है प्रेजेंट में जो है श्रीराम पवार, ये उसके ओनर हैं और इनकी डॉटर्स हैं. सो नाउ द क्वेश्चन इज वेदर दिस ट्रेडिशनल बिजनेस, क्योंकि इनकी रेसिपी भी जैसे KFC की रेसिपी सीक्रेट है, इनकी खुद की रेसिपी भी सीक्रेट है, एंड ऑल द फेमस पर्सनैलिटीज अराउंड द वर्ल्ड, जितने भी जो भी हम सोच सकते हैं अलग अलग एरियाज में से, दे हैव बीन टू दिस हरे राम नमकीन, और ये इनकी फैन फॉलोइंग है. बट द क्वेश्चन इज नाउ कि आगे कैसे. सो हम लोग जो काम कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट एंड डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड करके, सो दैट नेक्स्ट टाइम में सपोज इनकी डॉटर्स उनको लगता है कि कभी इस चीज को परस्यू करना चाहिए, तो दे कैन जस्ट उसको देख सकते हैं. दिस इज अनदर क्राफ्ट टेम्पलेट. सो दीज आर द टेम्पलेट्स. हम लोग जब फील्ड में जाते हैं एज अ प्रैक्टिस, तो हम लोग वी यूज दिस टेम्पलेट, like in this we have name, commonly known name. So this is a Sinhara craft of Balia. It's a very, you can say, famous in the region, but not popular in India totally, I mean. So ये भी लेबर इंटेंसिव है. इट्स अ वैनिटी बॉक्स और सिंदूरदान, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सिन्हौरा सिंदूरा. सो देयर आर
several folk stories also associated with it. तो it's not about just कि एक utility का चीज है, but इसमें एक emotional connect भी है. एंड इसका नाम क्या, कई लोगों को नहीं मालूम, कई लोग नहीं जानते हैं, बलिया में है ये. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट टेम्पलेट्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है हम लोग एट आईसीएस डिवीजन, हम लोगों को ये फील्ड एक्सरसाइज में जो है हम लोग इसको फॉलो करते हैं. सो थैंक यू बिकॉज इसमें बहुत कुछ है एस्पेक्ट बताने को, बट आई थिंक एक जनरल को एक आइडिया जो है आपको मिल गया होगा. सो आई होप कुछ आइडिया जो है आपको ओके रिगार्डिंग व्हाट इज ICH and how at ICH division we do the documentation work. So Dipti, this was I think just general introduction to them, so I hope it's sufficient, or should I elaborate further? I mean, there are other areas also. I think it was good to know about the intangible cultural heritage. I think it must have helped the participants. Mm-hmm. Okay. Does anyone has any question for Harish? Anybody wants to ask him anything? Yeah. Anyone, any question, any doubt, any suggestion, you may ask, because intangible is all about interaction. It's about interacting with one another. Yeah. Good evening, sir. Good evening. Sir, actually, I am a student of geography and I am pursuing my PhD in ecotourism potentialities. So I have included cultural heritage that is both tangible and intangible. About tangible, I learned a lot from this workshop that I attended so far. But is there any other sources from where I can learn about intangible cultural heritage in more detail? How to document it and how to map it? I will suggest you that if you go through with our first website, the Intact, first the main website of Intact, that is intact.org, and also in that you will find our divisions section, intangible cultural heritage division section, which is there. In that you will come across with all kind of activities, all kind of projects which we have done so far. And also we have a archive, the AV archives, the audiovisual archives, in which we have, you can say, showcased our work, whatever we have done so far in form of audiovisual images and all. So you can look at that. Also, other than that, as we all know that social media is one of the key areas if anyone needs to understand. So we are on Instagram as well and on YouTube as well. So you can have a look at the Intangible Cultural Heritage Division Intact on both Instagram as well. So you can get an idea that what kind of activities is being uploaded from time to time. So YouTube, we have our full-fledged AV documentation, like we have about Ramayana, we have done Gaya Pitrapaksh as well. Then we have rice culture of Northeast as well, full-fledged documentation work. So you can have a look with those you can say the areas which I mentioned. So you will get an idea that how. And other than Intact, you can also look at the IGNCA. They do have several, a rich library of all the AV work which they have done, and library also. So you will get an idea that what kind of work IGNCA is having in. Good evening, sir. I hope. Good evening, Ankush. Yeah. Yes, sir. Good evening, sir. Sir, your presentation was really intriguing. We have learned a lot. So my question was that, sir, recently I visited Pune for Ganpati festival. Great. And there's a very famous
Ganpati temple in Pune, that is the Daglu temple. So I visited Okay. it and I came to know about that there are other 8 Ganpati temples in the Right. vicinity, and you have to visit simultaneously one by one. And the last one is the Daglu temple. Great. I was not Mhm. aware about it. So, Mhm. sir, the ancient pilgrim routes are also Mhm. part of these intangible culture. Def- Have you documented Definitely. any? We have documented the this Braj Holy Trail, the 40 days event which happens at Braj, the Mathura, Vrindavan, and all the nearby villages. So we have documented that trail, that how from Nandgaon to Barsana, the these Gwalas comes, how then they proceed further to other villages, and from Palin to Mathura to Gokul. So we have, in terms of, I won't call it ancient, but in terms of our route, we have, you can say, um, documented this holy breast trail, and we are trying that we get it on, GIS or something like that on advanced software, so everyone can understand that पर्टिकुलरली कौन सी जगह पर क्या इवेंट होता है, किस तरीके से 40 डेज का ये होली जो फेस्टिवल है दैट प्रोसीड. Yeah. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, Ankush. Is there any question, you can ask, feel free. There is, no such formality. I hope presentation से बोर नहीं हुए कोई. कुछ तो मतलब आइडिया लगा होगा कि ICH है क्या. सिंपल शब्दों में ये कहें, ऑल्दो इट्स अ वेस्टर्न कॉइन टर्म, बट ICH हर इंडिया में तो बहुत पहले से और बहुत ही जो कहें कि हमारे जितने भी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज रही हैं, दोज हैज मेजरली जो है ओरल ट्रेडिशन पे बेस्ड नहीं, सॉरी. तो ICH हैज बीन देयर इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया, और डॉक्यूमेंट ही it has transmitted from generation to generation. So we do have people जो आज भी उस चीज को कर रहे हैं, whether it's in form of practicing a craft, or an art, or some performance, some dance, or food ways, cuisine also. There are 20 participants, but I hope कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो बनने चाहिए थे इस पे. So I don't know whether बाकी लोग की कोई क्वेश्चन है या नहीं. सर गुड इवनिंग सर, मेरा नाम तुषार चतुर्वेदी है. गुड इवनिंग तुषार, हाउ आर यू? सर आई एम फाइन. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब मैं रिफाए आर्म क्लब विजिट किया था लखनऊ सिटी में, कैसरबाग में, मजीदगंज एरिया में पड़ती है ये एरिया, तो सर वहां पे मैंने एक मतलब निशाने मीर है, निशाने मीर, हाँ सर वहां पे मैंने विजिट किया था. एक्चुअली सर जो ये मीर थे सर, ये तो उर्दू पोएट थे 18th सेंचुरी में, जो मुगल के समय में थे सर ये, और इनका Right. देहांत माना जाता है कि सर ये लखनऊ में ही हुआ था. लेकिन जो उनकी असल कब्रगाह है वो तो सर, जब कुछ लोग कहते हैं कि स्टेशन बना तो उसी में सर वो नष्ट हो गई और ऐसी डिस्प्लेस हो गई. लेकिन सर जो उनके वर्क्स हैं सर, बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स हैं. जैसे मतलब वो तो क्यों दिल्ली स्कूल ऑफ उर्दू के सर एक प्रिंसिपल भी रहे थे, और उन्होंने लव और मेटाफिजिक्स में सर इतने अच्छे अच्छे चीजें लिखी हैं. जैसे मतलब उन्होंने मतलब जो लेजेंड जैसे फराद हो गए या जो हो गए मिर्जा गालिब हो गए, उन्होंने मतलब सबको उन्होंने एक तरीके से क्वेश्चन कर दिया. मतलब माना जाता है बहुत अच्छा क्रिटिक्स उन्होंने किया था. सर जैसे उनकी राइटिंग्स हैं और जैसे उनकी मतलब चीजें, तो क्या उनको इसमें ऐड किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, डेफिनेटली. तुषार, नाम क्या बताया था? तुषार, राइट? तुषार, या तुषार. बिल्कुल, ये सब जो कंपोजिशन है, ये सब चीजें, ये सब जो एस्पेक्ट है, ये इंटेंजिबल का पार्ट है. ऑल दोज ग्रेट कंपोजिशन, पोइट्री, स्टोरी राइटिंग, ये सब उसमें सम्मिलित है. उसमें जो अमूर्त विरासत हम इंटेंजिबल को हिंदी में कहते हैं, उसमें ये सब, ये जो आपने बताया कि ऐसे मीर साहब रहे और उन्होंने ये सब लिखी, उनकी रचनाएं जो हैं इसमें पूर्ण रूप से सम्मिलित होती हैं. तो आप
अगर आपको मौका मिले कभी तो अपने एंड पे, व्यक्तिगत तौर पे, पर्सनल एंड पे, या फिर आप सुझाव के रूप में या एक प्रपोजल के रूप में, यू कैन राइट टू अस एज वेल। मतलब एक अच्छा खासा जो प्रपोजल बना के आप इंटैक्ट को भी दे सकते हैं कि ऐसे हमारे पास जो है रहे हैं व्यक्ति जिन्होंने इतना जो है बेहतरीन काम किया, जिनकी शायरी या जिनके जो काम है उनको संरक्षित या डॉक्यूमेंट एटलीस्ट करने की जरूरत है। यू कैन थिंक अबाउट राइटिंग अ प्रपोजल एज वेल। सो इंटैक्ट में या जहां भी आपको लगता है कि आप उस चीज को कर सकते हैं, इवन ऑन योर पर्सनल जो कैपेसिटी में आप अगर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, आई मीन अगर आपको वहां पर जाने का लिबर्टी है, सो आप उसको देख सकते हैं। बट अगेन मैं, जैसे मैंने अंकुश को बताया था कि यू कैन लुक, एक बार हमारा जो वेबसाइट है, मतलब जो हमारा इंटेंजिबल का, उसको एक बार आप देखें और थोड़ा सा एक और मतलब आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। सर जैसे मैं आपसे हाँ। उनके से जैसे कुछ लाइन थी, जैसे मेरे संगे मजार पर फराद रख तेशा कहे है यास्तार। तो मतलब जैसे इनकी इतनी ब्यूटीफुल लाइंस थी। और सर मेरी जो इंटर्नशिप थी अभी जो मतलब चल रही थी लिस्टिंग की, इसमें सर मैंने सोचा था कि मैं इस प्लेस को रखूंगा। और सर मैंने मतलब उसका पूरा से प्रॉपर प्रपोजल ही बनाया था सर, फोटोज और पूरा जीआईएस लोकेशन के साथ। बट सर हम्म। इशू है कि सर जो वो पर्टिकुलर मेमोरियल है सर, वो जो 1947 कट ऑफ एक मानी गई है सर, तो सर उस पे वो नहीं, वो सर आजादी के बाद बनाया गया है। मतलब लोग वहां पे कहते ओके। हैं कि 1970 1978 में बनाया गया है, तो जो हम्म। एक्चुअल है सर वो तो सर गायब हो गया है सर। मतलब वो मतलब डिस्प्लेस ही हो गया है। तो सर हम्म। इसको कैसे, मतलब इसको ऐड करने में सर कोई इशू तो नहीं है सर? देखो, इशू कुछ नहीं है। इशू मीन्स हम, हमारा जो उद्देश्य है, हम उनकी जो रचनाएं हैं, हमारा जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी, जो एक इनलाइटेंड सोसाइटी हम कहें, उसके प्रति क्या उनका जो है कंट्रीब्यूशन रहा, उस चीज को लेकर हम काम कर रहे हैं। अब जो बात रही कि वहां पर वो 1947 का क्लॉज या फिर वो चीज अभी है या नहीं है, वो बात की मतलब उस चीज पे जो है अथॉरिटीज, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, वेदर इट्स लैंड का जो डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश का या लखनऊ का, या फिर जो आर्काइव्स है, मैपिंग वाले जो वो हैं, क्या कहते हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, साथ ही साथ उनके जो वंशज अगर कोई हैं, आई मीन जो उनके कोई भी नाती पोते हों, उनसे बात करके उस जगह पर वो फिर मतलब एक हायर लेवल पे किया जा सकता है। पर अभी जो है मेरा मतलब जो सजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि आप जो है उनकी जो रचनाएं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, एंड जो उनका जो भी उन्होंने काम किया, उस चीज पे अगर आप फोकस करके, देन आप यू कैन प्रोवाइड एक, आप उसमें सजेशन दे सकते हैं कि इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि इनका जो निवास स्थान या रेजिडेंस था, इट वाज एट सच सच, मतलब जो स्पॉट में, विच नीड्स टू बी वेरीफाइड बाय द कंसर्न ऑफिशियल्स जो भी वहां पर हैं, वेदर दे आर हिस्टोरियंस, लैंड के जो डिपार्टमेंट है, जो आपके ये होते हैं अलग अलग मैपिंग के भी बहुत सारे स्टेट लेवल पे होते हैं, तो उनसे हम बात करके वो चीज देखी जा सकती है, उसको फर्दर वो किया जा सकता है। बट मुख्य ये है कि उनकी रचनाएं क्या थी और उसको क्यों समाज में जो है वाई दे आर रेलिवेंट फॉर प्रेजेंट डे सिचुएशन एज वेल, और वो इम्पोर्टेंट है। वो आप उस चीज पे मतलब फोकस करें। और कंट्रोवर्शियल पार्ट पे आप सजेशन यू कैन जस्ट राइट कि इट इज बिलीव कि यहाँ पर था, विच नीड्स टू बी फर्दर वेरीफाइड बाय द जो भी ऑफिशियल्स हैं या फिर जो डिपार्टमेंट है। तो मेरे हिसाब से तो ये रहेगा, आप इस तरीके से करें। ओके सर, आई विल सेंड प्रपोजल टू दीप्ति मैम। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सर। थैंक यू तुषार। और दीप्ति, आई थिंक लगभग सारे ही जो है क्वेश्चंस का, या फिर अगर कोई और है तो। हेलो सर, माय नेम इज अभिनय कुमार हाय फ्रॉम अभिनव। वाराणसी। ग्रेट। सर, माय क्वेश्चंस कि हम किन किन चीजों को इंटेलिजिबल कल्चर के अंदर रख सकते हैं। देखो अभिनव, आप बनारस से हैं। बनारस अपने आप में ही इतना समृद्ध जो कहीं क्षेत्र है। बनारस तो हर बच्चा बच्चा देश का जानता है, और विश्व में शायद ही कोई हो जो बनारस के बारे में, काशी के बारे में न जानता हो। आप ये समझें कि इंटेंजिबल मतलब लोक परंपरा। लोक परंपरा में आपकी सारे जो मान्यताएं, खान पान, वेशभूषा, आपकी जो सोच है, वो सब उसमें सम्मिलित है। तो आप जब आप जो सोचते हैं उस चीज को करते हैं, वो टेंजिबल बन जाता है। आपने मिट्टी ली, मिट्टी से आपने घड़ा बनाया, तो
जो है वो आपका टेंजिबल फॉर्म में बन गया, एक उसको आपने आकृति दी। बट आपकी जो सोच है दैट इज उसके पीछे कि मैं इसको ऐसा शेप दूंगा कि गर्मियों में इसमें ठंडक रहे, सर्दियों में जो भी जिस हिसाब से आप सोचते हैं, दैट इज इंटेंजिबल, उसमें आपकी थॉट प्रोसेस है। तो आप जो है बनारस को लेकर बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्र मुझे ऐसे लगते हैं जहाँ पर 84 घाटों में सारे घाटों के बारे में लोगों को नहीं मालूम और लोग घूमते भी नहीं है, लोगों को जानकारी भी नहीं है उन घाटों के बारे में। जैसे गौ घाट हो गया या फिर और भी घाट हैं, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहे, बट बहुत सारे ऐसे घाट हैं जिनकी कहानियां, जैसे एक वो मंदिर भी है जो शायद पीसा से ज्यादा झुका हुआ है, शिवालय है शायद, यस उसके सर, पीछे की काशी करवट। Yes, sir. यस सर, काशी करवट सर, जी जी, काशी उसके करवट, बारे में आई मीन मणिकर्णिका घाट पर है सर। जी, आज भी मतलब लगभग 5 बजे करीब लगभग आरती का टाइम हो चुका है, वहां पर शुरू होने वाली है, बट पीपल आर अनअवेयर ऑफ इट कि भाई ये पीसा से ज्यादा झुका हुआ है। तो उसका ये सब जो बातें हैं, ये सब जो एरियाज है, इस पे मतलब आप काम कर सकते हैं। और इंटेंजिबल केवल शब्दों से आप वो ना हो कि इंटेंजिबल बोल दिया तो ये क्या बोल दिया। इंटेंजिबल का सरल भाषा में जो है वो है लोक परंपरा। लोक परंपरा में आपके सारे घर से जो शुरू होते हैं, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, या जो भी आपके घर में होते हैं कस्टम, दीपावली पे, भाई दूज पे, या फिर और भी जो हमारे माने जाते हैं संक्रांति वगैरह पे, या जिस भी फेथ, जिस भी बिलीफ मतलब आप रखते हैं, उस हिसाब से आप उस चीज को आप कर सकते हैं। तो ये एक मतलब अच्छा वो रहेगा कि अगर आप इस प्रकार के जो है ना 84 घाट्स में भी आप देख सकते हैं कि कितना काम हो चुका है। मुझे तो नहीं लगता कि 84 घाट के नाम भी सबको पता होंगे, केवल दशाश्वमेध और 80 घाट के अलावा जो नॉर्मल पब्लिक भी जाता होगा शायद ही इतने घाट के बारे में, मुंशी घाट के बारे में क्या कहानी है, तुलसी घाट के बारे में क्या कहानी है कि प्रयाग से तुलसी जो आपकी उन्होंने वहां लिखी और फिर यहाँ पर आकर, सॉरी मतलब लिखा यहाँ पर, और उसका जो नाट्य रूपांतरण था या नाट्य फॉर्म में उसको प्रयाग में आपका होने लगा, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। तो इस यस प्रकार के बहुत सारे लेसर नोन एस्पेक्ट्स हैं जो इंटेंजिबल है। प्योरली टेंजिबल तो 84 घाट लगभग अच्छी हालत में है कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जो घाट्स हैं, चाहे वो मिर्जापुर में हो। तो आप मुझे लगता है बहुत अच्छा अवसर है आपके पास। आप उन मतलब एक सजेशन है, बाकी तो आप देख सकते हैं, आप बनारस से हैं। थैंक यू सर। ओके सर, अभिनव। हाँ हेलो सर। हेलो। सर मेरा एक आपसे सर मेरा आपको चाहिए था सुझाव सर। इनटैक्ट स्कॉलरशिप का इस साल का जो टॉपिक है कल्चर, सिटीज एंड कम्युनिटीज, राइट। तो सर हाँ, उस पर हम कम्युनिटीज को लेकर किस टाइप के काम कर सकते हैं सर? क्योंकि कम्युनिटीज आर द कम्युनिटी आर द स्टेक होल्डर फॉर एनी कल्चरल हेरिटेज। डेफिनेटली। आप आई थिंक आपके मतलब नाम पे IIT BHU आ रहा है, तो बनारस से ही सर, आप हाँ हैं? सर, ये सर, हाँ वाह बनारस से ग्रेट। हैं। और सर देखिए आकाश, आपके पास बहुत अच्छा अवसर है। आप जो है चाहें तो मुझे लगता है कि निषाद कम्युनिटी के ऊपर जो नाविक समुदाय है वहां पर, यस निषाद सर, जो है जो नाव बनाते हैं उनके ऊपर भी बहुत स्थानीय सारा लोग हैं। काम एंथ्रोपोलॉजी पे काम हुआ है। लेकिन उनका जो सांस्कृतिक पक्ष है कि वो जब नाव बनाते हैं, लकड़ी लेके आते हैं नाव बनाने की, आपका लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए वो लकड़ी आती है, अब स्टील की बन रही है। उस नाव को बनाने के पीछे भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि किस तरीके से वो बनती थी। पतवार वाली पहले बनती थी, अब स्टीम वाली बन रही है काफी, जिसको कहें कि बहुत पावर बोट्स जो होती हैं। समय के साथ क्या बदलाव आया है, नाव की वो पूजा करते हैं, गुड़िया का त्योहार हाँ मनाते हैं, सर, उनके जो इष्ट देवी हैं या इष्ट देवता हैं वो कौन है, किस तरीके से वो अलग अलग, क्योंकि मेजर फेस्टिवल्स के अलावा उनके कुछ फेस्टिवल्स खुद के भी होते हैं, उनके पंडे भी अलग होते हैं। दे हैव यस सर, उनके लिए अलग जो है पंडे प्रीस्ट रहते हैं, जिनसे वो अपनी जन्म पत्री, जीनियोलॉजी वगैरह भी, कि उनके दादा कब कहाँ गए थे, जो भी चार धाम है वो सब का जो है पोथा वगैरह या जो लेखन कार्य है वो सब अलग रहता है। तो कल्चर पार्ट पे एक तो निषाद के ऊपर बहुत कम काम हुआ है। दूसरा आपका जो बनारस की सबसे पहली जो इमेज पे देखते ही पता लग जाता है कि ये बनारस के घाट हैं, वो हैं उसके जो आपके कैनोपीज, जो छतरियां हैं। हर पंडा के हाँ सर, पास वो कैनोपीज होती थी। अब शायद ही दशाश्वमेध घाट या 2-3 घाटों में वो 4-5 जगह पर ही बहुत सीमित हो चुकी है। उनको बनाने वालों के बारे में आप उनको अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। वो कौन से कम्युनिटी या जो है आपके उससे आते हैं जो उसको बनाते हैं, जो वो छतरियां बनाते हैं। और साथ ही साथ उस छतरी का एक और जो है, जो घाटिया पंडे होते हैं जो घाट पे बैठते हैं, उनकी पहचान जो है
जो भी उनके जो कहें कि वो आते थे आपके यजमान वगैरह परफॉर्म करने के लिए रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज, वो उस छतरी से, मतलब अब तो खैर अब तो आपके पास मोबाइल और व्हाट्सएप और वो सब है कि आप उसमें आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बट आज से 30-40 साल पहले जो लोग थे वो जब आते थे तो उनको बताया जाता था कि आप हाथी वाले निशान के पंडे के छतरी के नीचे आप जाएं, वो हमारे पंडे हैं। तो वो सब चीजें जो है वो आप देख सकते हैं। तो 2 सुझाव तो मेरे यही है कि आप इन पे 2 क्या 3, मतलब जो मैंने पहले भी बताया था, अभिनव को शायद बताया था कि 84 घाट है आपका। एक तो ये घाटिया जो पंडे हैं वो घाटिया पंडा, उसका मतलब जो छतरी वगैरह है उनमें जो और दूसरा तीसरा ये जो नाव का जो बताया मैंने, आप तो इन पे आप काम कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। और सर बनारस में बनारस के लखा मेला होता है, बनारस में लखा मेला 4 मुख्य तथ्य हैं, रथ यात्रा का मेला, या अभी हुआ था नाग नथैया का मेला, नाग नथैया का मेला, मिलाप होता है। जैसे वर्ल्ड फेमस है, इसको अगर डॉक्यूमेंट करना हो सर तो क्या वो अच्छा रहेगा? क्योंकि यहाँ के जो कम्युनिटी है इनका बहुत ज्यादा रोल है उसको उसमें। आकाश, बात यह है कि देखिए डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये नहीं कि आपने जो बात पहले बताई जा चुकी है वही बात आप ला रहे हैं दोबारा, वो रिपीटिशन हो जाता है। मतलब कोई चीज अगर एक ही थीम पे बनी है तो उस पे अगर बार बार आप करेंगे तो डुप्लीकेसी हो जाती है, तो उसमें कुछ नया नहीं निकल के आता है। तो आपको कुछ नया निकालना है तो यहाँ के कुछ फोक त्योहार है, फोक त्योहार भी यहाँ के कुछ लोक त्योहार, लोक मेला है होता है। जैसे यहाँ पे अभी हुआ था लोटा हुंडा का मेला होता है यहाँ पे। बहुत अच्छे हैं, बल्कि ये नाम मैंने सुने भी नहीं, जो आपने 1-2 मेले के नाम बताए ना, वो आप उनको पकड़ के कि नाटी इमली बोल रहा हूँ, ये जो भरत मिलाप हो गया, ये रामलीला हो गया, नाग नथैया हो गया, इसके अलावा भी जो आप बता रहे हैं उसको भी पकड़कर आप बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंटेशन या प्रपोजल बना सकते हैं। मतलब आपको करना चाहिए, आपको कोई इसमें वो नहीं होनी चाहिए, आप शुरू कर सकते हैं। बल्कि आज से ही अगर आपको लगता है आपके पास समय है, आप अपना इसको बना के अपने एंड पे आप एक डॉक्यूमेंट कर लें, तो आपको कभी भी कहीं पर भी उसको दिखाना हो तो आप दिखा सकते हैं कि ये मैंने न केवल टेंजिबल में मैं काम कर रहा हूँ बल्कि मैंने ICH को भी डॉक्यूमेंट किया है। और हो सके तो जो आप जिस कम्युनिटी को कर रहे हैं उनको भी कहें, उनके बच्चों को, कि भाई आप खुद भी अपने घर के उसका वीडियो बना के रखें, जो बड़े बुजुर्ग हैं खासकर, क्योंकि बिकॉज वही हमारे वो हैं जिसको कहें ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्योंकि एक ब्रेक पिछले 10 साल में हो गया जब से स्मार्टफोन्स आए, तो उनसे जब तक हम जानेंगे नहीं तो अब आपने जैसे तुलसी गौड़ा के बारे में तो सुना ही होगा कि 35,000 35,000 अब ऐसे लोग हमें अब शायद ही मिले, बिकॉज व्हाट्सएप, विकिपीडिया या फिर गूगल पे भी बहुत लिमिटेड कंटेंट है और ये सब हम पे ही डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि गूगल में कोई अलग बैठा है बनारस की जानकारी देने के लिए, गूगल हमसे ही कोऑर्डिनेट्स लेता है और हमसे ही पता करता है कि ये फला घाट क्या नाम है इसका। जी, आप तो आर्किटेक्ट के, आपको पता होगा कि किस तरीके से गूगल काम करता है, गूगल का मैप। आर्कियोलॉजी सर, मेरा आर्कियोलॉजी है सर, मेरा सब्जेक्ट। ओके आपका आर्कियोलॉजी, सॉरी, ठीक है आकाश, आई थिंक आप कर सकते हैं इस पे का। और नाउ आई थिंक दीप्ति, I don't think there are any questions. I think you can we can all say thanks to you. I think this session has been very informative for the participants, and I think they have really enjoyed it. At least they have got to learn, because for past 4 sessions we had been talking about the built heritage and how to. So sometimes we tend to forget that what are the thoughts and what is the intangible cultural heritage behind it. Like you mentioned about the matka, like or Taj Mahal. So those are really nice examples of, we only see the tangible aspects. We tend to miss on the intangible aspects. So it was really great. And thank you so much, Harish. Thank you to you. Thank you to everyone. और best wishes की सब अच्छा I can't hear you. मैं म्यूट हो गया, नहीं मैं हूँ, आई थिंक sorry, I'm audible. Yeah. So I'm saying thank you to you, Dipti. Thank you to everyone and best wishes for their endeavors कि वो अच्छा करें जो भी कर रहे हैं। और कुछ ना कुछ जो है 20 लोग हैं, 20 आइडियाज जरूर होंगे, आई थिंक। So okay, thanks. Yeah. Thank you. Thanks, Harish. Okay. Thank you, sir.